ਵਿਚਾਰਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਕਦੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਰਤਰੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਮਾਂਝ ਦੁੱਖ ਹੋਰ, ਲਾਭ ਹੋਤ ਸਾਂਝ ਭੋਰ, ਲੰਡ ਜੋਰ ਜੋਰ ਕਰ ਫੇਰੇ ਚੱਲ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਝ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਤਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਕੱਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚਲੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇ ਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਖੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੁੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਦੁਖਦ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਔਰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਗਮ ਕਤਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਕਤਈ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਤਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਰ ਗਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ਨ, ਐ ਗਮ ਤੂੰ ਪੂਰਾ ਲਸ਼ਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ। ਅਗਰ ਗਮ ਲਸ਼ਕਰ ਅੰਗੇਜ਼ਨ ਕਿ ਖੂਨੇ ਆਸ਼ਿਕਾਂ ਰੇਜ਼ਨ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦਾ ਖੂਨ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੋਬ ਕੋਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ, मेरा खून करना चाहे। अगर गम लश्कर अंगेज़द के खूने आशिकां रेज़द, मनो साकी बहम साजम व बुनिया दश बर अंदाज़े। जितने चिर तक मेरा साकी, जितने चिर तक मेरा मालक, जितने चिर तक प्रभु दी याद मेरे कोल है, ऐ गम मैं सारियां दियां जड़ां पुट के रख दियां। व बुनिया दश बरंदा, बुनियाद मैं सारियां दियां बुनियादां ही पुट के रख दियां, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दियां। इतनी हिम्मत नाल कह रहा। गम की आउंदा है, गम दी की हिम्मत है, दुख दी की हिम्मत है। इस अवस्था नूं धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इस पंक्ति च बयान किया है, दुख नहीं सब सुख ही है रे, सब कुछ सुख है, सब कुछ सुख है ही नहीं दुख। दुख नहीं सब सुख ही है रे, हार नहीं सब जेते, कोई हार नहीं है, जेते जेते है, जय ही जय है, जेते जेते है। कोई दुख नहीं है, सुख ही सुख है, कोई गम नहीं है, आनंद ही आनंद है। इसे ही अवस्था का इंज कह लो, इसे ही पंक्ति का टीका कर रहे हैं नंद लाल। अगर गम लश्कर अंगेज़द के खूने आशिकां रेज़द, मनो साकी बहम साजम ब बुनिया दश बर अंदाज़िम। ऐ गमो ऐ दुखो मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दियांगा। जितने चिर तक प्यारे दी याद मेरे को, जितने चिर तक वो प्यारा मेरे हिरदे च बैठा है, मैं सारियां दियां जड़ां ही पुट के रख दियांगा। इन्ना हौसला। कई दफा जब देखते हैं कबीर निर्धन भी है ते जात करके लोकी शूदर कहते हैं, जुलाहा है बिरादरी करके रहिंदा भी एक टुटी फुटी झोंपड़ी दे छे, कोई लंबा चौड़ियां बावां भी कोई नहीं, भरा और लंबा चौड़ा कुटुंब भी कोई नहीं,
ਸਾਰੇ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਦਾ। ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸੁਆਨੇ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਛਪੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਦੋਂ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਗਾਲਬਨ 42 ਤੇ 43 ਦੇ ਜਦ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ 'ਚ ਅਜੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਛਪਵਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖੀ ਸੀ ਮਿਲਾਪ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਰਣਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ, ਹੋਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਾ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਜਦ ਸਾਰੀ ਸਿਆਣਪ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਦ ਸਾਰਾ ਸੁਆਪਣ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਦ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਜੂਦ ਬਣਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਇੰਝ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸੁਆਪਣ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਿਖਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਭੂਮਿਕਾ 'ਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 800 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਰਾਮਾਇਣ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਜੰਗ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸਰੂਪਨਖਾ, ਇੱਕ ਸੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਲਕਸ਼ਮਣ ਤੋਂ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਸਰੂਪਨਖਾ ਦੀ ਨੱਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। ਸਰੂਪਨਖਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਸਰੀਰਕ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਕੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਨੈਣ ਨਕਸ਼ ਉਸਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਰਾਵਣ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਨੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਸਵੈਮਵਰ, ਖੁਦ ਵਰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਚੁਣ ਲਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਵਰਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਸਵੈਮਵਰ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰ ਚੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ 'ਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾ ਦੋ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਮਾਲਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਨਵਾਸ ਦੇ 'ਚ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣਾ। लंबी चौड़ी गाथा है, मुख्तसर में अर्ज करा। जब उसने बार बार इल्तिजा की थी तो लक्ष्मण ने कह दिता जिस नक ते तैनू बड़ा माण है, जिस सुअपण ते तैनू बड़ा माण है, नक कट देती। जिस जगह ते कटी उत्थे अज एक शहर वसिया है, ते शहर का नाम भी है नक, नाशिक। नाशिक नक नूं कहंदे, नासका नक महाराष्ट्र दे च शहर का ना ही नक है। पंजाबी च असीं नक कह देंगे, उर्दू च नाक कहते हैं, मराठी संस्कृत दे च नासका कह देंगे। नासिक पंचवटी उत्थे ही है, गोदावरी उत्थे ही वगदी है। और गजब दी गल है, उत्थे स्वरूप नखा दा मंदिर भी है। मैं तो देख के हैरान होया,
लोकी पूजते भी ने, मत्था भी टेकते हैं। मंदिर है, स्वरूप नखा दा मंदिर है। भाई हद हो गई। जिस दी कारण इतनी वड्डी जंग हुई ओदा मंदिर भी है। दिन भर लोकी आउंदे ने, मत्था टेकते हैं, माया चढ़ाते हैं। लेटी हुई उत्थे सुती हुई स्वरूप नखा, लंबी मूर्ति है, नक कट्टी हुई, नासिक। आखिर एक राजे दी भैन सी ते एशिया दा माहौल ऐसा है, मनुख किसी दी भी तोहीन हो सकता है, बर्दाश्त कर लवे अगर जिगरे वाला है। भैन दी तोहीन बर्दाश्त नहीं करता, भैन दी गाल बर्दाश्त नहीं करता। रावण भी नहीं कर सके। इस एशिया दा माहौल। उन्हें आख्या कोई गल नहीं, तेरी नक कट्टी है, मैं बदले च हुण राम दी नक कट्टांगा। किसी दी पत्नी चुक के लियाणी, अगले दी नक ही कटनी और कुछ भी नहीं। वो बदले च पत्नी चुक के लिया। इब्तिदा हुई लक्ष्मण दी तरफों, शुरुआत हुई लक्ष्मण दी तरफों। विचारक लोग स्वरूप नखा नूं कसूरवार नहीं मनते। स्वयंवर की प्रथा सी उन्हां दिनां च। बच्चियां अपना वर आप चुनदियां सन, स्वयं वर खुद चुनदियां सन। ये तो प्रथा सी, इहदे ते कोई इतराज़ नहीं। समय अनुसार बाद विच इस ते बंदिश लानी पई। जज्बे दे तहत, भावुकता दे तहत बच्चियां वर ते चुन लैंदियां सन, पर अक्सर गलत चुन लैंदियां सन। या भावुकता जद ठंडी हो जाती सी, रिश्ते निभते नहीं सन, बच्चे रुलते सन। विद्वानां ने, धार्मिक ऋषि मुनिया ने इस प्रथा नूं बंद कर दिता और इत्थे तक बंद किया कि जिहड़ी बच्ची स्वयं वर चुनेगी उन्हों कलंक नहीं मनिया जाएगा, उन्हों दागी मनिया जाएगा। इस प्रथा दे उत्ते इतनी रोक लाई, इतनी बंदिश लाई। तो स्वरूप नखा ते बेकसूर है और सीता भी बेकसूर है। इंज कह ले, दोवें बेकसूर ने। दोहां नूं दुख भोगना पिया। एक दी नक कटी गई, एक नूं रावण चुक के लै गया। लाला दौलत राय कहते ने, इन्हां दो इस्त्रियां नूं एक पासे कर दईए, ये जंग हो ही नहीं सकती सी, ये युद्ध नहीं हो सकता सी। पढ़ लेना है किताब। अजकल इहदा पंजाबी अनुवाद भी हो गया है, तो उहदा नाम रख दिता ने महाबली गुरु गोबिंद सिंह। 60 साल तक कहते हैं किसी लेखक की किताब नूं कोई छाप नहीं सकता उसकी इजाजत तो बिना, पर चूंकि हुण समा हो गया। 1906 दे उन्होंने छपवाई सी लाला दौलत राय ने, तो हुण काफ़ी समा हो गया है, तो कानून के हिसाब नाल छापी जा सकती सी। दूसरा यह भी अर्ज करा, लाला दौलत राय कौन से? ये आर्या समाज का प्रचारक से। करदा ते आर्या समाज का प्रचार से। किधरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जीवनी पढ़ बैठा तो दसम ग्रंथ पढ़ बैठा, इतना प्रभावित हो गया, उन्हें फिर यह किताब लिखी है सुहाने उमरी गुरु गोबिंद सिंह, जिहदी भूमिकता ने मैनू इतना प्रभावित किया भी सारी पढ़नी है। भूमिका चो लिखता है, ईश्वर का सारा सुअपन, ईश्वर की सारी सियाणप, ईश्वर की सारी शक्ति जद इकट्ठी हुई, उस तो जिहड़ा मुजस्मा बनया, उस मुजस्मे का नाम है धन गुरु गोबिंद सिंह। वो इंज कहता है। अगां चल के वो लिखता है, ये युद्ध होया है, दो राजे ने, एक अयोध्या का होने वाला राजा है, राजकुमार है, राज शक्ति है, भावें बनवास है, पर राजनीति है उसदे कोल, राज सत्ता दी झलक है उसदे कोल। दूजा लंका दा राजा है, दोवें राजे, दोहां कोल सेना है, दोवें लड़ते हैं, दोवें राजे ने लड़ते हैं, दोहां कोल सेना है, लड़ते हैं।
लड़ाई का कारण एक राजे की भैन, एक महान अवतारी पुरुष राजा राम की पत्नी। ये कारण कहंदा मैं फिर देखदा महाभारत के युद्ध का कारण, उत्थे कारण की है? कहंदा उत्थे इको ही स्त्री है द्रौपदी, उसके कारण हो। सारे युद्ध की जो रूप रेखा लिखता है वह भी पढ़न वाली है। इस तो पता चलता है बड़ा रोशन दिमाग बंदा से और इतिहास का खोजी से, इतिहास का पड़चोलिया से। महल बनाया सी पांडुआ ने, पर धरती के उत्ते फर्श इस तरह लाए, जिहड़ा फर्श सी, जो टाइलां लगियां, जिस ढंग की बनावट बनाई जमीन की फर्श की, वो सरोवर लगती सी। ते जिथे सरोवर से वो जमीन लगती सी, उहदे उत्ते ऐसी चित्रकारी कर दी, रंग खिलेर दिते द्रौपदी ने। सरोवर ते लगदा सी फर्श, बगीचा, और जो वास्तविक है फर्श से वो लगदा सी सरोवर। तो जो फर्श से लगदा सी सरोवर वो पहले सी, उतों दुर्योधन ने पहले लंघना सी। सारियां नूं बुलाया गया सी, महल का उद्घाटन, बड़ा खूबसूरत महल बनाया। अगे जिहड़ा सरोवर से लगदा सी बगीचा, वो बाद दे से। पहले जो लंघन लगा ना दुर्योधन, तो उन्हें अपने कपड़े समेट ले, भाई पानी है, तो पानी तो है नहीं सी, फर्श सी, पत्थर से। निश्चिंत होके चलने लग पाया। सोचदा है जब ये पानी नहीं है, एवें बनावट है, ये सब कुछ तोड़ तक बनावट है। अगों ते पानी सी, पानी दे उत्ते रंग खिलेरे हुए सन, बगीचा लगदा सी। उसे निश्चिंता दे नाल जो चलिया ते डुब गया, पानी च गिर गया। तैरना जानदा सी, निकलते आया, और वो जिहड़े रंग खिलेरे हुए सन, वो जिहड़ी खूबसूरती बनाई सी द्रौपदी ने, वो सारी खत्म हो गई। इहदे नाल चोट बड़ी लगी द्रौपदी नूं, भी कितने दिनों की मेरी मेहनत, ते अज महल का उद्घाटन है, मेहमानां ने आना है, लोगों ने आना है, इन्नी खूबसूरती नूं बदसूरती च बदल के रख दिता है इसने। वो भी अपने वेग नूं संभाल ना सकी, कौड़े बचना दे राही वो वेग निकलिया अंधे दा अंधा। धरतराष्ट्र अंधा सी, दुर्योधन दा पिता अंधा सी, अंधे दा अंधा। दरअसल इतना कौड़ा वचन एक सुशील, पढ़ी लिखी और सतरी सावित्री नूं शोभदा नहीं सी, कह गई वेग दे। भुल्लां ते हर एक कोल होंदियां, हो गई गलती। दुर्योधन नूं ये बोल चोट कर गए, चोट कर गए। कहंदा फिर देख लई अंधे दा अंधा की करेगा, फिर तू देख ले, हुण मैं तैनूं दसांगा अंधे दा अंधा की करदा है। बोल चोट कर गया। इस बोल करके महाभारत का युद्ध होया। कहंदे 28 खूनी सैन्या नष्ट हुई, बड़ा भारी खून खराबा होया। उस वक्त दे चोटी दे साइंटिस्ट, उस वक्त चोटी दे इंजीनियर सब मारे गए, उस वक्त चोटी दे ज्ञानी विद्वान सब मारे गए। अगर इतिहास नूं पढ़िए, कारण लड़ाई दा एक स्त्री, रामायण की लड़ाई का कारण दो स्त्रियां। हुण अगे चल के जो लाला दौलत राय कहंदा है, 800 सफ़ियां की गल मैं तुहानूं चंद मिनटां सरवण कराउण लगा। कहंदा हुण मैं देखदा है गुरु गोबिंद सिंह ने तलवार उठाई है, मैं देखदा बंदूक भी चुक लई है, मैं देखदा इतिहास के पन्नियां ते धनुष्बाण भी कोल है। ये इतने युद्ध लड़े,
इतनियां जंगां कीतियां, कारण कोई इस्त्री सी? कहंदा नहीं, ये युद्ध किसी इस्त्री दे कारण करके नहीं होया। चाणक ऋषि लिखते ने जंग दे लड़ाई दे तीन ही कारण होंदे ने, जिन्हों उर्दू रूप इंज दिता गया जर जमीन जोर। जर सोने नूं कहंदे ने, धन नूं कहंदे ने। लड़ाई झगड़ा धन की खातर होवेगा, जमीन भूमि की खातर होवेगा, या किसी इस्त्री की खातर होवेगा। जिस घर दे बहुत कलेश होवे, बहुत कलेश होवे, गुस्ताखी माफ, 90% ते समझ लेना इस्त्री ही कारण होवे। चाहे वह सस कारण होवे, चाहे नूह होवे, चाहे माँ होवे, चाहे धी होवे, चाहे दिराणी होवे, चाहे जेठाणी होवे। बहुते पाड़े का कारण 90% इस तरह ही होता है। परिवार टुट जाते ने, पुरुष करके नहीं, दो भरावां करके नहीं, दो इस्त्रियां करके। इस तरह परिवार टुट जाते हैं। खैर, मैं लंबा चौड़ा इस दे उत्ते ना कुछ बोलां, क्योंकि मैं भी गृहस्थी हाँ, तो मैं अपने अनुभव की गल जो जगत का देखा है, सारा यूरोप टुट गया है, परिवार टुट गए ना उत्थे। और कई मैं चशमदीद देखे, भरा नाल रहना चाहते सन, इस्त्रियां ने नहीं रहना दिता, नहीं रहना। जे भरा रहेगा तो मैं नहीं रहती। मैं तो ऐसे कुछ मित्रों को देख के दंग रह गया। मैं कहा फिर लाला दौलत राय, उन्हें कुछ इस तरह के ख्याल दिते ने। मैं कहा ठीक है, उसका अनुभव भी ठीक है। कहंदा है जद मैं देखदा है जिहड़े तीन कारण ने लड़ाई दे, युद्ध दे, इस्त्री, ये इस्त्री कारण नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का तलवार उठा लेना, बंदूक उठा लेना। जमीन भी कारण नहीं है, जर भी कारण नहीं है, धन भी कारण नहीं है। फिर कहंदा जद मैं द्वापर दे देखदा दोवें पासे राजे पै लड़दे ने। रामायण विच मैं देखदा दोवें पासे राजे पै लड़दे ने। जद मैं गुरु गोबिंद सिंह की लड़ाई देखदा, एक पासे वक़्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे केवल एक फकीर है। एक फकीर है, ऐसा फकीर जो कोई बहुत बड़ा जागीरदार नहीं है, जिहदे कोल बहुत वड्डी सेना नहीं है, जिहदे कोल कोई लंबे चौड़े शस्त्र वस्त्र भी नहीं है। खुद गुरु गोबिंद सिंह ने कबूल किया है, ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, कोई लंबी चौड़ी फौज मेरे कोल नहीं है, शस्त्र वस्त्र नहीं है, धन संपदा नहीं है। लेकिन फिर भी औरंगजेब मैं तेरे नाल मत्था मारांगा। फौज नहीं है, धन नहीं है, शस्त्र नहीं है, फिर किस आसरे ते मत्था मारोगे? ना साजो, ना बाजो, ना फौजो, ना फर्श, खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श। ऐ औरंगजेब, खुदा दी याद मेरे हिरदे च है। जिन्ने चिर तक मेरा खुदा मेरे हिरदे च बैठा है, मैं तेरे कोल हार नहीं मननी, नहीं मननी। मैं तेरे नाल मत्था जो है मारांगा। खुदावंद बख्शन दई ऐशो अर्श, भला चारगी दरमिया आमदम, व तदबीरो तीरो तुफंग आमदन। लाला दौलत राय कहते दोवें पासे राजे नहीं ने, एक पासे वक़्त की शक्तिशाली हुकूमत है, एक पासे एक फकीर है। इस फकीर दे शस्त्र उठाने का कारण इस्त्री नहीं है, धन भी नहीं है, ते जमीन भी नहीं है। इसने तलवार उठाई देश की रक्षा की खातर, देश के धर्म की खातर, मजलूमां की रक्षा की खातर सब कुछ अपना कुर्बान कर दिता। इस देश तो, देश के धर्म तो, देश की संस्कृति तो। देश के परवाने ते आज़ादी दिलाने वालियां दा जद ना लेना चाहिए, सब तो सिरमौर नाम होना चाहिए धन गुरु गोबिंद सिंह का। बदकिस्मती है, ईर्ख है। ना किधरे तलवार उठती उस वक़्त
तो पता है भारत की जिहड़ी हालत आउंदी, ये कवि संतोख सिंह जी की जबानी सरवण करो तो मैं अगे चला। कवि संतोख सिंह जी कहते ने, छाए जाति एकता अनेकता बिलाए जाति, होवत कुचीलता कतेबन कुरान के, पाप ही परपक जाते धर्म दशक जाते, बरन गरक जाते सहत विधान के। देवी देव देहुरे, ये देवियां दे मंदिर, देवतियां दे मंदिर, अवतारां दे मंदिर। देवी देव देहुरे संतोख सिंह दूर होते, रीत मिट जाती कथा वेदन पुराण की, श्री गुरु गोबिंद सिंह पावन परम मसूर, मूरत ना होती जोपे करना निदान की। ये मंदिरां दे गुंबद बच गए, ये रामायण की कथा बच गई, ये भागवत की कथा बच गई, ये पुराण बच गए, देश की संस्कृति बच गई, केवल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की तलवार का सदका। वो जर की खातर नहीं लड़े, जमीन की खातर नहीं लड़े, जोरों की खातर नहीं लड़े। लाला दौलत राय कहते ने, इस वास्ते मैं कुर्बान हाँ धन गुरु गोबिंद सिंह तो। कमाल की गल, आर्या समाज का प्रचारक महिमा दे ग्रंथ लिखता है गुरु गोबिंद सिंह दे। जिन्हां ने अध्ययन नहीं किया, इतिहास को नहीं पढ़ाया, सतगुरु के बचनों को नहीं पढ़िया, अजे पूरी तौर पर धन गुरु गोबिंद सिंह जी की महिमा को नहीं जानते, नहीं जानते। अगर ये देश नहीं जानता तो नहीं पढ़िया, नहीं समझे। अगर समझे आउंदा तो एहसानमंद होना चाहिए सी। हर भारतवासी मंदिर बच गए, जनेऊ बच गए, पुराण बच गए, भागवत बच गई, रामायण बच गई, देश की प्राचीन संस्कृति बच गई। नहीं तो जो हाल अफगानिस्तान का होया है, ईरान का होया है, इत्थे भी वही कुछ होना सी। कवि संतोख सिंह जी जो है साफ लिखते पे ने। खैर ये तो सुभाविक सुते से सामने जो है गल आ गई, तो मैं इतना जो है बयान कर देता है। जिहड़े कहते ने सब ब्रह्म ही ब्रह्म है, दृष्टि मुखड़े ते टिक गई है, मुखड़े ते टिक। एको ब्रह्म द्वितीया नास्ति शंकराचार्य, कोई दूजा नहीं है, माया नहीं है ही नहीं, भ्रांति है। सिर्फ ब्रह्म ही ब्रह्म है। इस गल का सबूत है शंकराचार्य जी की निगाहां मुखड़े ते टिक गई हैं, ब्रह्म ही ब्रह्म दिखाई देता है। परमात्मा ही परमात्मा दिखाई देता है, पर पदार्थ भी है, पदार्थ भी है। कि तन पदार्थ तो बिना जिंदा रह ही नहीं सकता, पदार्थ भी है। इस तरह करना चाहिए है जो गुरमत ने सानू शिक्षा ते दीक्षा दी है। कदी निगाहां उपर कर ले, कदी थले कर ले, उपर थले वेखदा जा। बदकिस्मती है जिन्हों ने थले कर लिया ने, थले ही कर लिया ने। कहते ने पदार्थ है, परमात्मा नहीं है। संसार है, निरंकार नहीं है। जिन्हों ने निगाहां उपर कर लिया ने, वो कहते निरंकार है, संसार नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते परमात्मा भी है, तो परमात्मा तो होया पदार्थ भी है, आत्मा भी है, शरीर भी है, निरंकार भी है, संसार भी है, वो निर्गुण भी है, वो सरगुण भी है। निर्गुण आप, सरगुण भी ओही, कलाधार जिन सगली मोही। पदार्थ की खातर परमात्मा नहीं छड़ना, परमात्मा की खातर पदार्थ नहीं छड़ने। कुछ ऐसा तबका जो परमात्मा की खातर थोड़ा जिहा तबका पदार्थां नूं छोड़ दें, घर बार छोड़ दें, परिवार छोड़ दें, राजपाट छोड़ दें, धन संपदा छोड़ दें। कितना भी छोड़ दो, तन दियां लोड़ां दी पूर्ति ते करोगे, कुछ ना कुछ ते करोगे। कहो कबीर जिस उदर तिस माया, जिहदे कोल पेट है ते पेट दे च भुख है, आखे मैं माया दा त्यागियां। कबीर कहंदे झूठा है, महा झूठा है। कहो कबीर जिस उदर तिस माया, बड़ा कीमती बोल है कबीर का।
आखिरी समय तक, बुढ़ेपे तक किरत करते रहे, काम करते रहे, कपड़ा बुनते रहे। है भी है, पदार्थ भी है, परमात्मा भी है। लेकिन एक दफा नजर उठ गई एक छिन वास्ते, अगर नजर थले भी कर लिया कोई समस्या नहीं होगी। संसार कोई औकड़ नहीं खड़ी करेगा, परिवार कोई औकड़ नहीं खड़े करेगा, धन कोई औकड़ नहीं खड़ी करेगा। असी जनक नूं देखते हैं, महाराजा रणजीत सिंह नूं देखते हैं, असी इन्हां सारे भगतां नूं देखते हैं, परिवार वाले सन। ना परिवार रोकदा है, ना पदार्थ रोकते ने, ना संसार रोकदा है। कोई चीज़ बाधक नहीं आती बल्कि साधक बन जाती है। सारिया समस्यावां दा हल हो जाता है अगर एक छिन वास्ते चित किधरे प्रभु दे नाम दे जुड़ जाए। इस पूरे शब्द दे महाराज नाम की महिमा गायन कर रहे हैं, पर यह नाम जिन्हां दे अनुभव दे आया है कि एक छिन एक दफा दा आखे होया सारे पाप धो देंदा है, सारिया समस्यावां मिटा देंदा है। ये जद कर्म कांडियां दे हथ, अनुभव विहीन मनुखां दे हथ, ना समझ मनुखां दे हथ ये गल जद आ जाती है, वो फोका कर्म कांड बन के रह जाती है, सिर्फ व्यर्थ का कर्म कांड। और बहुत छोटिया छोटिया गल्लां। कल ही किसी ने 2 सवाल मेरे से लिख के भेजे सन, कहने लगे जरूर जवाब देना, तरला भी बड़ा किया। मैनू कहने लगे गुरु ग्रंथ साहब दे च राम आउंदा है, रहीम आउंदा है, हरि हर आउंदा है, बड़े नाम बड़े नाम। ये बहुत सारे नामां दा मतलब इन्ना ही है। बहुत सारे नामां करके प्रभु जानिया गया, बहुत सारे नाम भगत लोग जपते रहे। और गुरु नानक दा फैसला बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। हर नाम दा जप, हर मंत्र एक रस्ता बनाता है, मन की हालत बनाता है। तो चलन लई कोई एक रस्ता ते चुनना पेगा। मंजिल है 10 मील, मैं 1 मील एक रस्ते ते चढ़ा, फिर वापस आके दूसरा रास्ता, उस ते 1 मील चला, फिर वापस, फिर मैं तीसरा रास्ता। भावें रस्ते सारे ही जाते ने, पहुंचने वास्ते कोई एक रास्ता चुनना पेगा। भावें सारे ही मंत्र परमात्मा तक पहुँचा देंदे ने, पर परमात्मा तक पहुँचने वास्ते कोई एक मंत्र चुनना पेगा। मंजिल है 10 मील, मैं 1 मील एक रस्ते ते चढ़ा, फिर वापस आके दूसरा रास्ता, उस ते 1 मील चला, फिर वापस, फिर मैं तीसरा रास्ता। भावें रस्ते सारे ही जाते ने, पहुँचने वास्ते कोई एक रास्ता चुनना पेगा। भावें सारे ही मंत्र परमात्मा तक पहुँचा देंदे ने, पर परमात्मा तक पहुँचने वास्ते कोई एक मंत्र चुनना पेगा। अगर तू गुरु नानक दा सिख है तो गुरु नानक दे नक्शे कदम ते चलना है, तो सतगुरु ने सानू वाहिगुरु मंत्र दिता है। और अनुभवी पुरुष दसदे ने कि नाभि ते चोट बहुत ज्यादा करता है। वाहिगुरु वाहिगुरु, ये नाभि ते चोट बहुत ज्यादा करता है। मन की जागृति बहुत छेती हो जाती है, जल्दी हो जाती है। इस मंत्र का अपना जो है असर है बड़ा भारी भरा। रोज रोज दुनिया अगे जा रही है। पैदल चलते होंदे सन, फिर रथ, कच्चियां सड़कां, पर अज हाईवे ने, रेलां, मोटरां, गड्डियां तक ने। ते जे आखिए नहीं, पुराने लोग तो इंज धार्मिक कर्म करते सन, तो फिर एक प्रश्न खड़ा होंदा है, पुराने लोग तो पैदल ही चलते सन, या ऊठां की सवारी करते सन, या बैलों की, या घोड़ियां की, या वध तो वध बना सके सन ते रथ ते। तू स्कूटर ते क्यों आना है, रथ ते आ। तू साइकिल ते क्यों आना है, बैल ते चढ़ के आ। तू एक शहर तो दूजे शहर रेल दे क्यों जाना है, बस दे क्यों जाना है, रथ दे जा, घोड़े दे जा। कमाल दी गल। बाहर दा सारा व्यवहार तू अज दी उन्नत कर्मां दे मुताबिक, उन्नति दे मुताबिक करना चाहना है। सिर्फ धार्मिक कम पछड़ेपण नाल करना चाहना है जो पिछे हज़ारां साल पहले होया, इहदा भी विकास होया है। सुन लो धन गुरु नानक देव जी महाराज दी बाणी। सतयुग सत त्रेता जगे, द्वापर पूजा चार,
तीनों जुग तीनों दृढ़े कल केवल नाम आधार। कोई यग का समा नहीं है, कोई 68 तीर्थां दे भरमण का समा नहीं। जिंदगी बड़ी मसरूफ हो गई है। उदों लोग पैदल चलते सन, अद्धी जिंदगी बल्कि अद्धी तो भी ज़्यादा तीर्थां दे भरमण दे लंघ जाती सी, इतनियां लोड़ां नहीं सन। अज जीवन दीयां लोड़ां वध गईयां, समस्यावां वध गईयां ने, समा मनुख कोल इतना नहीं है। हर एक चीज़ दे उन्नति की गई, थोड़े जिहा समय दे बहुत वड्डा काम हो जाए, लंबी यात्रा थोड़े जिहा समय च हो जाए। हवाई जहाज, रेल, मोटरां, गड्डियां, थोड़े जिहा समय दे बहुत सारे काम हो जान। बड़ी भारी मशीनरी, जिहड़ा टोआ पुटना है शायद 2 महीने लग जान, मशीनां 4 घंटियां च पुट के रख देंदियां ने। मशीनां नाल बिल्डिंगां पईयां बनदियां ने। सारे काम तू अज दी उन्नति टैकनीक नाल करना चाहना है। सिर्फ धर्म का कम हज़ारां साल जो पछड़िया होया सी वो करना चाहना है। सतयुग सत त्रेता जगे। मैं किसी पुराने की निंदा नहीं करता पिया। वो पैदल चल चल के भी टिकाणे ते पहुँचते होंदे सन, उन्हां कोल समा सी। मैं ये नहीं कहता नहीं पहुँचते सन, वो रथ ते बैठ के भी पहुँचते सन, वो घोड़ियां ते सवारी करके भी पहुँचते सन, ऊठां ते बैठ के भी पहुँचते सन। पर अज ऊठां ते बैठ के मंजिल तय करने का जमाना नहीं है। अज बैलों के उत्ते सवारी करने का जमाना नहीं है। अज रथ के उत्ते बैठ के लंबी यात्रा करने का वक्त नहीं है। मनुख को इतना समा नहीं है। अज तो सिर्फ एक चित हो के एक दफा वाहिगुरु आखीए ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे पाप धुल जाते हैं, जन्मां जन्मांतरां दे संताप मिट जाते हैं। एक चित जय एक छिन ध्यायो, काल फास के बीच न आयो, निर्वाण कीर्तन गावो करते का, निमक सिमरत जित छूटे। निमक एक सेकंड। सतयुग सत्रेता जगी, द्वापर पूजा चाड़, तीनों जुग तीनों दृढ़े, कल केवल नाम आधार। इस युग दे केवल नाम दे जपण नाल उधार होवेगा। कोई भी नाम जपे होया पुछा देना है, पर किसे एक नाम नूं जपना पेगा। हर मंत्र अपने मन की अवस्था बनाता है, अंदर सुभाव बनाता है, और सारे मंत्र परमात्मा तक पहुँचाते हैं। तदी ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। मंत्र का मतलब बोल, नाम, उच्चारण, शब्द। हर शब्द हर नाम उस तक पहुँचाता है, पर चलण वास्ते कोई रास्ता अपनाना पेगा। हर मंत्र एक रास्ता है। गुरु नानक का अनुभव हज़ारां साल समय दे जो उन्नति हुई, और ये जो नवी टैकनीक नवा मंत्र धन गुरु नानक देव जी महाराज ने साढ़े सामने रखे है। निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक। हुण निमक एक सैकंड दे एक नाम का उच्चारण करना है। एक दम एक सैकंड है। समय की गिणती सब तो पहले किस तरह हुई सी? समय नूं जो नापण तोलण का जिहड़ा पैमाना है वो दम। जितने समय दे एक दम बाहर आउंदा है एक सैकंड है। जितने समय दे ये श्वास विरास चल रहा है एक सैकंड है। एक सैकंड दे आउंदा है। दम दम सदा समालदा, दम ना बिरथा जाए। एक दम एक सैकंड है। यकदम बखेश राह ना बुरदम के कीसतम, ए वाए नकदे जिंदगी राय गां गुजस्त। एक दम मेरे को नकद से मैं ये कदी टिकिया ही नहीं। नंद लाल कहते नकदी मैं सारी बर्बाद कर देती। नकद मनुख को एक दम है। एक दम दे एक नाम पूरा हो जाता है। कोई भी नाम एक दम दे पूरा हो जाता है। ओम एक दम दे पूरा हो गया, राम एक दम दे पूरा हो गया, वाहिगुरु एक दम दे पूरा हो गया, अल्लाहू एक दम दे पूरा हो गया। एक दफा वाहिगुरु आखदियां ही जन्मां जन्मांतरां दे पाप मिट जाते ने, बशर्ते उस वक्त सारी चेतना, सारी एकाग्रता, सारा ध्यान एक दम दे होवे। तो उस एक दम दे ध्यान किवें होवे? बार बार दास अर्ज करदा हुंदा है,
उस एकदम दे जो वाहिगुरू आख्या है वो ध्यान उसनों सुन लवे, फिर ध्यान पूरा जाग जाता है, मन पूरा जाग जाता है। जागया होया मन भगवान का रूप हो जाता है, सुता होया मन शैतान का रूप होता है। जैसे ये जागदा है सारिया समस्यावां का हल हो जाता है। इस शब्द के राही जो मेरे पातशाह कह रहे हैं आप सरवण करो, इतना विस्तार करना तो नहीं सी, गुरु ने करा दिता है। तो ये शब्द के अखरी अर्थ आप सरवण करो 6 पंक्तियां का। ये महावाक है, प्यार नाल आखो सतनाम श्री। हाँ जी। धनासरी राग के अंदर धन गुरु अर्जन देव जी महाराज ये वाक फरमान कर रहे हैं। हाँ जी। जीव नूं पार करन दा वसीला है गुरु दे चरण। सारा शरीर खड़ा है पैरां ते, परमात्मा दी सारी हस्ती खड़ी है गुणां ते। पैर कट दिओ, शरीर चलन जोगा नहीं रह जाता है, रुक जाता है। गुण सारे ही हटा दो, परमात्मा की हस्ती कायम नहीं आती। परमात्मा का रूप खड़ा है गुणा ते, दया है, निर्वैर है, निर्भयता है, सील है, संजम है, समदृष्टि है। इन्हां सारे गुणों के उत्ते परमात्मा की हस्ती खड़ी है। इन्हां गुणों के जो ध्यान जोड़ता है, सुरत जोड़ता है, और परमात्मा के चरणों च सुरत जोड़ता है, गुरु के चरणों के सुरत जोड़ता है। ये शरीर के पैरों नूं इत्थे इस तरह नहीं आख्या गया। हाँ, जिथे ब्रह्म प्रगट हो गया उहदे पैर फिर जिस जिस जगह नूं छूंदे ने वो जमीन पवित्र होंदी है, वो धूड़ अकसीर होंदी है, मस्तक ते लाण नाल बड़ा भारी प्रभाव पाती है। सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदाता इंतहा। मौलाना रूम कहते ने आद तो लैके अंत तक जे तू देखना चाहना है तो जिसने आद ते अंत देखे है उहदे कदमां दी खाक दा सुरमा बना ले। मौलाना रूम सुरमा कुंतो खाक औलिया ताबा बीनी इब्तिदाता अंतहा। जो अल्लाह तक पहुँच गया है उहदे कदमां दी खाक दा सुरमा बना ले। जे तू अल्लाह नूं वेखना चाहना है, उहदे मार्ग ते जो है चलना चाहता है, तो चरण प्रभु दे गुण ने। जिन्हां दा मन प्रभु दे चरनां च, गुरु दे चरनां च जुड़ गया, ये महासागर संसार अनेकां जिदियां समस्यावां ने एक खिंड दे च मनुख पार हो जाता है। एक दफा नाम जपिया ही पार हो जाता है। एक दफा वाहिगुरू आखिया ही सारियां समस्यावां दा, सारियां उलझनां दा, सारे दुखां दा अंत हो जाता है। हाँ जी। जिसने समुद्र सागर संसार सागर तो पार कर दिता एक छिन दे च, एक सैकंड दे च। हाँ जी। कोई ते बस कर्म कांड दे च प्यार है, कर्म कांड करी जा रहे। मैं फिर अर्ज करा, किसनों कर्म कांड आखोगे जिहदे शरदा कोई नहीं, भावना कोई नहीं, ज्ञान कोई नहीं, प्रेम कोई नहीं, कर रहे है। ये कर्म कांड सिर दा बोझ बन जाते हैं। पर महाराज कहते कई इस तरह ने इसे ही कर्म कांड दे अपना मन जोड़ी रखते हैं, जीवन भर करी रखते हैं, दुख ते कलेश भी भोगते रहते हैं, कर्म कांड का बोझ भी चुकते रहते हैं। हाँ जी। इस कर्म कांड दे कहते हैं जगह जगह के तीर्थां का इशनान। कोई होआ कर्मरत कोई तीर्थ ना आया। जगह जगह के तीर्थां ते गया इशनान पिया करदा। महाराज कहते हैं असी ते केवल प्रभु का नाम जपिया, केवल एक नाम जपिया। हाँ जी। वो जिहड़ा मालिक परमात्मा है सारे दुखों के बंधनों का, जन्म मरण के बंधनों का, पाप कर्म के बंधनों का कट्टण वाला है। हाँ जी। जेदा